Newton's law, mainly using the concept of torque. Okay, so in your examination, this kind of question can come in your exam. Mainly this is useful for IIT-JAM people, and sometime in a gate and net this type of question can come. So you cannot neglect that thing, because it's just a +2 type concept, and they can ask this type of problem. Okay, so obviously we have already learned Newton's law. So F is equal to ma. We have already done this thing. Now if you are doing F is equal to ma, and now if the moment of inertia will come into picture, the rotation will come into picture, the shape and size of a body will come into picture, then you have to consider one more equation, and that equation is torque equation. And what is your torque equation? Torque equation is nothing but R cross F, and this is equivalent to I alpha. This is equivalent torque equation for equivalent Newton's law equation for torque. Torque is defined as R cross F, and this will be I into alpha. This is something like Newton's law. Okay, so you have one more equation, and you have to use it. So this will just give you extra information about this. And if you are just doing the rolling without slipping condition or pure rotation condition, then alpha can be written as A by R, or A by R you can write. So alpha can be written as A by R. So this is your, and R is just if the radius of disk or radius of a sphere, this kind of situation is there if you are just doing pure rolling or rolling without slipping condition. So let's try to do the problem, unless until you are not going to do problem. There is not so much derivation and theory is there. So in mechanics, we have to learn with the help of problems. So let's try to go for a first question. Everybody is comfortable what I am trying to say? Sir, ये क्या है? Small e. This is just acceleration. Okay. Okay. V is equal to omega r होता है ना, उसी तरह अल्फा इज इक्वल टू या A इज इक्वल टू अल्फा आर, समथिंग लाइक V इज इक्वल टू ओमेगा आर. समझ रहे हो? एंड दिस इज, ये कब आप यूज करोगे? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. इस कंडीशन में आप इसे यूज करोगे. ठीक है? ओके, चलो, एंड लेट्स ट्राई टू गो फॉर इट. सो फर्स्ट इज वेरी फेमस अगेन एडवर्ड मशीन. अपने ये क्वेश्चन आपको याद होगा, हम लोगों ने किया था जब हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ किया था. तो बट करेंटली this disk is not a massless disk, and you can have this kind of support, and this disk has some mass m, and it is just trying to rotate on this particular about its center, and this rope is not going to slip on disk. So if it is rotating, then it is going down. It is rotating something like, and it is going down. Let's say this will be m2 and this will be m1. Are you people comfortable? क्या हो रहा है? ये डिस्क रोटेट करेगा तो ही ये नीचे आएगा. What we have to do? We have to calculate the acceleration of m1 and m2. So you remember we have done the same question when we have done the Newton's law, where we have assumed that this disk has a very small disk, and it has not any mass. It is massless, and here it has some radius r is also there. Now can you please tell me what are the external forces acting on these two masses? Obviously first is weight. Weight is here, so m2g. Now there will be tension into this particular masses. So is that both tension will same or different? Same.
सोच कर बताओ. No. Here these tension are different. Why? Because hence it is rotating, it will giving extra thrust to this rope, and this tension will be different to this tension. And here in the last problem, when you will go and revise that thing, you will find that tension will be same, but here your tension will be different. Okay. Is that acceleration of these two particles will be same or different? बताइए, acceleration will be same or different? Different. Same. Why? Same. Why different? Forces acting are different. No, because this length of rope is always constant. Then acceleration will be same, but in opposite direction, isn't it? हम लोगों ने किया था ऐसा प्रॉब्लम, आपको याद है? Sir. Okay. So we will write first equation of motion. So suppose it is going downward. So you will write m2g minus t2 is equal to m2a, and second equation is m1g minus t1 is equal to m1 minus a. Why? Because if it is going down, it will go up. So you can write this thing. So this is, you can just convert it also, that t1 minus m1g is equal to m1a. You can write like this also. So how many unknown is there? कितने unknown है? So 3. 3. T1, T2, A. So how many equation you have? Equation 1, equation 2, but you need one more equation, isn't it? Yes या no? तभी तो सॉल्व Yes. कर पाओगे कंप्लीटली इसे. वो इक्वेशन आपको कहां से मिलेंगे? एंड दैट इक्वेशन विल बी फ्रॉम टॉर्क इक्वेशन. Okay, that equation will be from torque equation. So you have to always take care of this thing, है ना? Just a minute. Just a minute. Okay, now let's try to go for this one. So what is torque equation? So when you will go for this particular disk, look at this particular disk. On this particular disk, what are the forces acting on this particular disk? Gravitation. Obviously gravitation, very good. So gravitation is there. Let's say this mass is mg, but it is just attached on here. So there will be some normal forces also there, isn't it? And it is not moving up and down. So there is not any role of gravitation, isn't it? This is one force. What are the another forces? T1 and T2 tensions. Tension. What is direction of tension? Downward. Obviously T1 in this direction and T2 is in this direction. Okay. So now, hence this particle, this body is not moving up and down. So obviously we need not to write any equation of motion, है ना? इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है. What it is doing, it is just going to rotate. ये क्या कर रहा है? Rotate कर रहा है. So if it is going to rotate, then what you have to do? You have to write what? Torque equation, isn't it? आपको क्या लिखना पड़ेगा? Torque equation लिखना होगा. So now, how you will write torque equation? This is your R. This is your R. So R cross T1 in this direction, R cross T2 in this direction. So the torque due to T1 and torque due to T2 will be same direction or in opposite direction? Opposite direction. Opposite direction. And what will be angle between this force and R? 90 degree. So you can write T2 minus T1 R is equal to what? I time alpha. This is your torque equation. And what is I? Suppose this is your disk. What is I? And this is ICM. Okay. What is your I?
mr square by 2. mr square by 2, and hence it is doing pure rotation. Then alpha can be written as what? A by R. A by r. Okay, so now you can see the second equation is you have T2 minus T1 is equal to, and R is also cancel, so m a by 2 है ना. Now we can just use these two equation and we can easily solve it. तो कैसे solve करेंगे? एक्सेलरेशन निकालना है, हम लोग दोनों को क्या कर दे, ऐड कर सकते क्या? So अगर हम ऐड करेंगे, what you will get? m2g and minus t2 plus t1 minus m1g is equal to m1 plus m2 into a, और इसे मैं लिख सकता हूं m2g minus t2 minus t1 minus m1g is equal to m1 plus m2 into a. I can write t2 minus t1 is equal to what? ma by 2 लिख सकते हैं क्या? Yes. है ना? Yes, sir. सो देख लो कितना स्मार्ट कैलकुलेशन है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है. जस्ट अ मिनट. सो यू हैव टू, okay, so what I can write? I can write m2g t2 minus t1, I can write m a by 2 minus m1g is equal to m1 plus, sorry, small m1 plus small m2 into a, and you can write m2 minus m1 g by m1 plus m2 plus m by 2 must be a. So this is your acceleration. Once you get acceleration, you can get t1, you can get t2. Are you people comfortable? Very interesting question, very nice question, very conceptual. Clear है ये? Yes, sir. ओके, सो लेट्स देखो, इस ये सारे टॉपिक को आप प्रॉब्लम से ही सीख सकते हो. सो जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप इस चीज को समझ पाओगे. ठीक है? यस, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल, बट बिफोर दैट let me remind you another thing. Suppose this is a sphere, and if this sphere is doing rolling without slipping, what will be velocity of this point? 0. 0. Very good. So इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा. And now frictional force can, and let me give you a statement. Frictional force is self-adjusting force. This statement is correct or false? True. True. It is true. That means you have to give the direction of frictional force according to your need. Isn't it? तभी तो सेल्फ एडजस्टिंग है ये, है ना? ओके, चलो इस प्रॉब्लम को हम देखने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज योर स्फेयर. सपोज एक आपका स्फेयर है एंड इट इज कमिंग डाउन, एंड हेंस एंड देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस. अनलेस अंटिल फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये रोल नहीं करेगा, है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस एंगल इज थीटा. This angle is theta. The mass of a sphere is m. The radius is r. Mass m है और radius क्या है? r है. Okay. Now, so question is that what will be
minimum value of coefficient of friction such that it will execute rolling without slipping. मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगा जिससे कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? क्या क्या फोर्सेज होगा बताओ. जब तक डिस्कस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, है ना. व्हाट आर द फोर्सेस? Gravity of friction. Force. Very good. This is your gravitation force, that will be mg. This is your normal force, that will be n. Then And now the Friction. question is that what will be direction of friction? Upward or downward? upward, sir. Upwards. Upward. क्योंकि if it will come downward, then mg sin theta will be in this direction, isn't it? It's a very interesting. mg sin theta will in this direction, and you need some torque which will rotate it something like this. So this frictional force will be in upward direction, isn't it? And this force is what? mg cos theta. And this angle is what? Theta. ठीक है. Now let's, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? Force equation. And after then what we have to write? Torque equation. Torque equation. Okay. So what is your force equation? mg sin theta minus frictional force is equal to ma. ठीक है. And obviously we have normal force, n is equal to what? mg cos theta. ये तो होगा ही होगा. And there is not any motion in vertical y direction, so normal force is always there. Now just tell me what will be torque equation? Torque mg sin theta के कारण होगा क्या? No, sir. No, sir. No. Normal के कारण होगा क्या? No, sir. No. mg cos theta के कारण भी नहीं होगा. तो torque किसके Friction. कारण होगा? Friction. Friction के कारण. And what will be torque? F into R. Because दोनों के बीच में एंगल कितना है? R और F के बीच में 90 डिग्री. And that value is equal to what? I into alpha. Clear है ये? And what is your value of I? Suppose it is fair. So what is the value of I? 2 by 5 m r square. What is value of alpha? A by R. A by R. F into R. है ना? So this is cancel out. So F is equal to 2 by 5 ma. Now I can put value of F here. I can get the value of A. मिल जाएगा ना? So I can write mg sin theta must be equal to ma 1 plus 2 by 5. ठीक लिखा हो ना? That value is 7 by 5 ma. So this is your mg sin theta. And what is value of A? A की वैल्यू क्या होगी? 5g sin theta by That is 5g sin theta. Okay. So here we are writing the value of A. Now, what is value of frictional force? 2 by 5 m. Sorry, क्या लिख दिया हूं मैं? 5g sin theta 5 by 7g sin theta. 5 by 7 g sin theta. Okay. So this is 2 by 5 m. A के जगह पर क्या लिखें? 5 by 7 g sin theta. So 5 is cancelled. This is 2 by 7 mg sin theta. This is your frictional force. Now, अब हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करना है. हमें क्या निकालना है? हमें फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह नहीं निकालना है. हमें क्या निकालना है? We have to calculate the limiting value of coefficient of friction. So what is limiting value? Limiting value क्या होगा? Mu into n, है ना?
and this mu into n must be greater than and equal to what? Frictional force. यही तो होगा, याद है मैंने करवा रखा है ये चीज, आप फ्रिक्शन के चैप्टर को जाकर देखो। लिमिटिंग केस कैसे आप डिफाइन करते हो? म्यू इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। जब वो हो जाता है तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन पर आते हो, है ना? एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? mg cos थीटा, है ना? सो म्यू इज इक्वल टू mg cos theta, that will greater than frictional force. And what is frictional force? 2/7 mg sin theta. So mg cancel, so mu must be greater than 2/7 g tan theta. नाउ यही प्रॉब्लम हम लोगों ने वहां पर किया था जिसमें कि एक ब्लॉक नीचे आ रहा था, तो वहां पर म्यू की वैल्यू क्या मिली थी? जस्ट ब्लॉक ट्रांसलेट कर रहा था, क्या मिला था म्यू का वैल्यू? जी tan थीटा। आप जाकर करना, व्हाट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना? सो दैट वैल्यू इज व्हाट? जी tan थीटा। बट यहां पर रोटेशन के कारण और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के कारण यहां पर क्या आ रहा है? 2/7 जी tan थीटा। सिर्फ tan थीटा होगा, हाँ सिर्फ tan थीटा होगा, जी तो कैंसिल। हाँ हाँ, सिर्फ tan थीटा, ओनली 2/7 tan थीटा। वहां पर क्या मिल रहा था हमें जब ब्लॉक था? तो दैट विल Tan बी theta. ओनली tan थीटा। आपको याद होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है? सो यू कैन जस्ट कंपेयर वॉट एवर यू हैव डन इनटू न्यूटन्स लॉ, यू कैन अगेन एग्जीक्यूट इट इन अ टॉर्क इक्वेशन। आप इसको टॉर्क इक्वेशन में इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? कुछ पूछना है? फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आए, बिकॉज इसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम से ही आप सीख सकते हो चीजों को। सर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी 0 क्यों होता है? और एक क्वेश्चन बता दे। बिकॉज अभी मैंने बताया था ना, व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उसमें क्या हमने देखा था? वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर की वैल्यू जब होगी, याद है? मैंने 3 फिगर बना करके दिखाया था। पहला में सिर्फ ये भी VCM था। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या है? एवरी पॉइंट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, है ना? और जब हमने प्योर रोटेशन किया था तो ये वाला पॉइंट क्या था? 0 था। सपोज इधर जा रहा है तो ये पॉइंट क्या था? VCM, सॉरी ओमेगा आर, और ये वाला वैल्यू क्या था? ओमेगा आर, ठीक है? और फिर इसके पास हमने 3 कंडीशन डिस्कस किया था, याद है? यस सर। एक में VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, दूसरा में VCM इज लेस देन ओमेगा आर, और थर्ड कंडीशन VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो उस समय ये वाला पॉइंट क्या था? तो इस पॉइंट पर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना? आपने वो क्लास किया है? यस सर। तो वहां पर तो डिस्कस कर किया हुआ है। नीचे वाला पॉइंट सर कैसे, मतलब कैसे 0 फिक्स अरे यार कैसे हो अभी रहा तो है? बता तो दिया, Velocity ये 0 पॉइंट जब VCM और ओमेगा आर बराबर होगा तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं हो जाएगी? दोनों को भैया ठीक है सर। दोनों को ऐड करो तो 0 नहीं होगा? हाँ, अच्छा यस यस सर, ठीक है। आप जाकर के, जब मैंने रोटेशनल डायनामिक्स शुरू किया था तो उस समय जो वीडियो है उसको जाकर देखो, ठीक है? ठीक है सर। मैं यहीं से मैंने सारा चीज शुरू किया है। ओके, चलो। चलो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन को बताओ, ये F है ना? F आपका अब हायर पॉइंट पे लग रहा है, ये स्फेयर है, दिस इज योर स्फेयर, ओके? एंड F इज एक्टिंग ऑन द हायर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर F लग रहा है, एंड देयर इज फ्रिक्शन, यहां पर फ्रिक्शन है। सो इफ दिस स्फेयर इज, एंड स्फेयर का मास m है और रेडियस r है, so you have to find the value of acceleration
such that this sphere will execute rolling without slipping. अब ये सवाल है कि किस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन लगेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ यू वांट टू डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, किस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? दो ही तो हो सकता है ना, आइदर टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। आप बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा। सर यहां पर सारे कॉन्सेप्ट का आपका दिमाग में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट हमें कैसे यूज करना है। व्हाई फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? राइट की तरफ लगेगा इस। राइट की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो आपको इधर जो आप फोर्स लगा रहे हो, तो इसके कारण जो टॉर्क है इस पॉइंट को किधर ले जाने की कोशिश करेगा? टुवर्ड्स इधर ले जाने की कोशिश करेगा, है ना? लेकिन हमें इस पॉइंट को क्या करना है? रोकना है, बिकॉज वी हैव यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सही है या नो? यस। तो अगर हमें इस पॉइंट को रोकना, इसके मोशन के कारण, सपोज मैंने एक फोर्स दिया, देन दिस इज जस्ट गोइंग टू रोटेट समथिंग लाइक दिस। अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा ना। So so if this point is moving into this direction, what we have to do, then the role of friction will come here, and this friction will try to keep this point as a stationary point. So the frictional force will be in this direction. It's an awesome question. Very simple, but very nice. Clear है ये? Now you have to just go for write the equation of motion. What will be equation of motion? F प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। ये तो लीनियर मोशन होगा ही होगा। एंड व्हाट अबाउट टॉर्क इक्वेशन? आर क्रॉस एफ एंड आर क्रॉस एफ दोनों का क्या होगा? अपोजिट या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। सो यू हैव एफ माइनस एफ आर। डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों की 90 डिग्री क्या है? एंगल इज 90 डिग्री। सो इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू? एफ माइनस एफ आर, आई इज इक्वल टू व्हाट? 2/5 एम आर स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा? ए बाई आर। सो आर 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 इज कैंसिल आउट। सो यू हैव एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 एम ए। सो यू हैव टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो फ्रिक्शनल फोर्स खत्म। 2F इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 ना, 1 ma। एंड व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 10F/7m। वंडरफुल प्रॉब्लम, वंडरफुल। वन लाइन का प्रॉब्लम है बट ऑसम वन। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। क्लियर है ये? यस सर। है ना? सो हमेशा आपको ये दिमाग में रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स को आप कैसे दिखा रहे हो। एंड दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जरूर करो, ठीक है? तो दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है ये? बोलो। एक डाउट था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन क्यों बैकवर्ड लिया? प्रीवियस क्वेश्चन की बात अलग थी। प्रीवियस कौन सा क्वेश्चन? जो वेज के ऊपर गिर रहा है उसकी बात कर रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि ये mg sin थीटा तो इधर ही लग रहा है, ठीक है? और mg sin थीटा सेंटर के ऊपर लग रहा है, तो इसको नीचे लेके जाना चाह रहा है। नाउ इसे एक रोटेट करने के लिए, रोल करने के लिए टॉर्क तो लगाना पड़ेगा, तभी तो नीचे आएगा, रोल करेगा ये। सो टॉर्क किसके कारण लगेगा? mg sin थीटा के कारण तो नहीं लग रहा है। नो सर। नहीं है तो फिर आपको एक फोर्स तो चाहिए जो इस पर टॉर्क लगाए। यस सर, यस। यस।
तो ये टॉर्क आपको फ्रिक्शनल इधर से भी लगा सकता है, इधर से भी लगा सकता है, दोनों तरफ से टॉर्क लग सकता है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर ही आ जाएगा तो ये पॉइंट क्या कभी भी स्टेशनरी होगा? नो सर। नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर उसको अगर बैलेंस यही कर फोर्स अगर यही फोर्स यहां आ जाता, ऊपर लगता, तो आपकी बात सही हो सकती थी जो यहां पर हो रहा है ना? क्योंकि इसके टॉर्क को फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क बैलेंस कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस है सर, ना? यस सर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो सेंटर पर लग रहा है ना, इसके कारण कोई टॉर्क नहीं है। सो इस पॉइंट को रोकने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स को इसी डायरेक्शन में देना होगा, देन ओनली इट विल डू द रोलिंग विदाउट स्लिप। ये दो काम कर रहा है, एक तो इस पॉइंट को रोक भी रहा है और उस पर एक रोटेट करने के लिए आपको टॉर्क भी लगा रहा है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके। चलो, let's go for last one. So this is a cylinder of radius r and mass m, और ये आपका wrap किया हुआ है, and they are symmetrically wrapped. Symmetrically wrapped का मतलब जितना दूर यहां से है इतना दूर यहां से, and they will always have horizontal, ये जो distance है वो क्या है, और हमेशा horizontal position maintain किया हुआ है, and this is just rolling down. So what will be tension and what will be acceleration of this particular body? Mass is, radius is r. Okay, चलो, इन दोनों पर टेंशन लगे, वेट लगेगा या नहीं लगेगा? सही है या नो? यस सर। वेट लगेगा। नाउ टेंशन लगेगा या नहीं लगेगा? दो अलग अलग रोप है। यस सर। यस लगेगा। सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम सेम सर। सेम होगा। वाई सेम होगा? क्यों सेम होगा? कारण क्या है सेम होने का? सर सेम फोर्स, सेम हाइट क्योंकि पर ये सेम हमेशा फोर्स। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, और जितना यहां से डिस्टेंस है उतना ही यहां से डिस्टेंस है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट विल बी ऑलवेज सेम टेंशन लगेगा दोनों के ऊपर। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। ठीक है? नाउ अब ये बताइए, टॉर्क इक्वेशन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। दोनों के थ्रू टॉर्क सेम होगा या फिर अपोजिट होगा? ऑपोजिट सर। अगर अपोजिट टॉर्क होगा तब तो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पर टेंशन सेम है। आप तो इसी एक के अबाउट रोटेट कर रहा है ना ये। इसी के अबाउट रोटेट करता है और नीचे जा रहा है। यस सर सेम होगा सर। सेम होगा, टॉर्क दोनों के कारण क्या होगा? सेम होगा। तो 2TR इज इक्वल टू व्हाट? आई अल्फा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा? आई की वैल्यू क्या होगी? mr²/2। mr स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा? a बाई A/r। आर। क्योंकि जस्ट इस पर कोई स्लिप नहीं कर रहा है, जितना रोप ओपन हो रहा है उतना ही वो नीचे जा रहा है। इस तरह की कहानी है। सो दिस विल बी 2t is equal to, so what is your 2t? 2t is equal to ma by 2. We can put here, so you have mg is equal to m ma plus ma by 2. So what is a की वैल्यू क्या आ रहा है? 2/3g ना, sorry, a is equal to 2/3g.
नाउ यू कैन फाइंड द टेंशन। टेंशन की वैल्यू क्या होगा? mg/6 आ रहा है क्या? देखो तो। So T is equal to ma/4. So m into 2g/4 into 3. So tension is equal to, so your tension is mg/6. So you can see same concept again and again आप लगा रहे हो और आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है? So I will stop here. So more or less we have done all the basic questions. ठीक है? Any question? हाँ सर, टेंशन जो होता है ना वो वर्टिकल डिस्टेंस पे कैसा मतलब डिपेंड होता है, मतलब आपने स्टेटमेंट वर्टिकल किया डिस्टेंस पर डिपेंड होता है? व्हाट डू मीनिंग बाय दैट? मतलब अभी दोनों सेम हाइट में है इसकी वजह से टेंशन सेम होगा। अरे नहीं नहीं, दोनों ये हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, इसके कारण जितना टेंशन ये लगाएगा उतना टेंशन नहीं लगेगा, तभी तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होगा। अगर ये ऐसे टिल्ट किया हुआ रहता देन इट इज डिफरेंट इशू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, अरे टिल्ट, हाँ, स्टेबल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेबल पोजीशन नहीं कहेंगे उसे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। मीन जितनी बार इसको लपेटा उतनी बार इसे भी लपेटा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस यस। है ना? अगर आप इसको ज्यादा लपेटोगे तो उसका ऑब्वियसली मास ज्यादा होगा, तो उसकी बात अलग हो सकती है। ठीक है? देन T1 एंड T2 विल कम इनटू पिक्चर। ओके सर। ओके ओके। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इट्स ऑलरेडी 8:55। सो नाउ हमने अलग अलग सारा सारा चीज को कर लिया है। अब आप इसको जाके प्रैक्टिस कीजिए। आई विल टेक वन मोर सेशन में सारे चीज को कंबाइंड करके प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है? जिसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा, टॉर्क भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, सेंटर मास भी होगा। तो हम लोग करने की कोशिश, दैट विल बी लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है? बट उससे पहले आप सारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।